So it's the art of effective feedback. I myself, Shagufta Shehzadi, and I'm working as a specialist assessment with Sargodhians Institute for Professional Development, Pakistan. Okay, the first thing comes first. The power of feedback. See, Bill Gates, who is the billionaire, in fact, the richest person in the world, he is he believes on feedback. He says that कि हम जो continuous improvement के लिए हमारे लिए कोई हो जो feedback दे दे जिससे एक continuous improvement हो. So it means कि हमारे पास जो everybody हम जिस position पे हो, जितना भी हम अपने subject पे command रखते हो, specialization हमारी है, there is always a room for improvement. That's for sure. So आज का जो session है, that will talk about what is feedback, feedback का purpose क्या है, what are the levels of feedback, principles and the language of feedback, types and delivery of feedback, some do's and don'ts, जो guidelines है, जो feedback हम design करते हैं, written हो, verbal हो, उसमें guidelines के बारे में हम discuss करेंगे, and last में हम रिसीविंग फीडबैक के बारे में बात करेंगे कि सिर्फ हम फीडबैक देने की बात नहीं करेंगे, रिसीविंग के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. सो थिंक फॉर अ व्हाइल, you as a teacher or you as a parent, you as a student, एक आम इंसान के तौर पर भी आप सोचें कि क्या आप कभी किसी से कहते हैं कि आस्क फॉर सम फीडबैक, और डू यू लाइक गिविंग फीडबैक डेली लाइफ में? सी आप घर पे कहें, रेस्टोरेंट में जाएं, खाना खाने के टेबल पे खाना खाने के बाद, क्लासरूम में, डू एवर आस्क कि आप किसी से कहें आप फीडबैक आपको देते हैं आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से? आप इसका रिस्पांस मुझे चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं. कोई एग्जांपल आप अगर आप शेयर करना चाहें तो आप अनम्यूट करें खुद को, और कोई एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल आप शेयर करना चाहें, शेयर कर सकते हैं. I can say something here. Okay. Actually, the feedback is very valuable in terms of any particular, reason or any particular product or whatever, situation. That means you are just putting your thoughts, how you feel the situation or the product or any, circumstance. So you are going to, let the prospect know how you're feeling and how he can improve. Whether this is solely depend on individual how someone is feeling. I see. My question was, do you have any example, आपके अपने daily life में that you have asked for a feedback for any improvement, or have you given a feedback to somebody else, अपने दोस्त, colleague? Yes, of course. Because जब भी आप किसी से कुछ पूछते हैं तो रीजन मीन्स यू डन समथिंग, यू वांट टू आस्क द फीडबैक. आप कोई काम करते हैं और किसी से उसका जो है ना फीडबैक पूछते हैं. तो एग्जांपल इस तरह है कि मैंने अगर किसी को जो है ना किसी को अच्छा टाइम दिया. फॉर एग्जांपल मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मैंने अच्छा टाइम दिया. मैंने किसी से पूछा कि ये किस तरह लगा आपको हमारा प्रोग्राम या इवेंट. फॉर एग्जांपल एक तकरीर थी, तो ऑफ कोर्स दे विल से ये अच्छा था, वो खराब था, इस तरह मतलब फीडबैक मिलता है. ओके. सही. अगर किसी और का कोई एग्जांपल, मैं स्पेसिफिक एग्जांपल का पूछ रही थी कि आपके क्लासरूम में आपने अपने कलीग को कहा हो कि जस्ट सिट बैक मेरी क्लास में और आप मुझे बताएं कि मेरे पास जो क्वेश्चनिंग स्किल्स है उस पे मैं फर्दर फीडबैक मुझे क्या चाहिए, किस तरह इंप्रूव करना चाहिए, या फलां कोई एक्टिविटी आपने डिजाइन की, या घर पे भी आपने कोई कुकिंग की है कभी और आप अपनी बहन अम्मी से कहते हैं कि मुझे चेक करके बताइए जरा ये कैसा बनाया है मैंने. The next हमारे पास, okay, ये screen, is it clear for you? I think this should Yes. work. Okay, now how if giving a feedback be like hitting a tennis ball? आपको कैसा Very लगेगा bad. अगर फीडबैक जो है ना किसी टेनिस बॉल को सामने से बॉल आ रही है एंड आपका ओवर टू यू बेसिकली,
how it would be like? If it is unaccepted, of course, then it will give a shock for a while. But then later on, when you enjoy the game, then you are going to be the part of it. So you accept it and you start playing with it. Okay, somebody else? Yes, of course. See, if it is like a tennis ball, the receiver, the basic thing is the receiver. It's not ready. जो बच्चा है कोई भी है, he's not ready to basically in the first place. He's not ready to accept the feedback. It can hurt. You know, it can attack personally, and it could be too fast. जो आप अगर इसमें हम बहुत verbal written में ले लें, तो it could be too fast, aggressive हो सकता है जो feedback दे रहे हैं हम लोग. It could be too quick, and you might be, you know, the receiver might believe that, might feel that it's a personal attack on him or her. Okay, so how if giving a feedback be like a prison? Giving a feedback be like a prison, how it would be like? Think of both receiver and receivers and givers end, दोनों end से देख के. It depends on the senders, who is actually sending you the gift. So if it's going to be a loved one, then you're always excited to open it. If it's going to be from some unknown person, so you take time to just guess, and then you have your reservation and apprehensions. Okay, can somebody else share your ideas, your thoughts about ये क्या लगता है इससे अगर हम इसको किसी प्रेजेंट में दे दें इस तरह खूबसूरत से लपेट के? Excuse me, ma'am. Yes, Rachna, please share your ideas. It's surprising, ma'am. We're surprised. We Mm. also surprised. Like, we feel very happy, ma'am. Yes, it could be surprising. Yeah. ठीक है. So the other things could be, you know, अगर इस तरह हम present के तौर पर दे दें तो it could be have a, you know, जो sender है he has a good intentions at the first place. वो hurt नहीं करना चाहता है जो receiver है. उसको nicely पैक किया गया है और of course surprising होगा और it will not be, you know, too fast, too quick. Receiver जो है उसके पास time होगा इसको ओपन करने का. डायरेक्ट उसकी पर्सनल अटैक नहीं होएगा, उससे पर्सनल अटैक नहीं होगा. तो जो रिसीवर है वो टाइम लेगा इसको अंडरस्टैंड करने में. पहले तो वो खूबसूरती से खोलेगा. अब वो डिपेंड करता है ना अंदर आपने क्या पैक करके दिया है. डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं करेगा. उसको टाइम मिलेगा उसको रीड करने के लिए, रीड करने के लिए, समझने के लिए. So this is what the difference is between the, you know, giving a feedback in like a present or giving, you know, feedback like hitting a ball. Okay. अब मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर आपसे किसी से फीडबैक लेना हो तो आप किस बंदे से फीडबैक लेना पसंद करेंगे? The one who critiques or the one who compliments? देयर आर टू पर्सन्स. एक वो जो क्रिटिक करता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट करता है. तो आपको फीडबैक चाहिए, आप किसके पास जाएंगे? और जो क्रिटिक करता है उसके भी पॉइंट्स है यहाँ पे, जो कॉम्प्लीमेंट करता है उनके भी हैं. यू कैन ओपन योर माइक्स. Ma'am. यस रचना. Compliment, ma'am. Compliment, of course, ma'am. Everybody can listen to positive things, no, ma'am. Who else? कोई और? Actually, it should be from both. दोनों से ले सकते हैं और बेहतर है कि क्रिटिक वाले से लें ताकि आप इम्प्रूव कर सकें. और if we do Somebody- it from the critic, if we take the feedback from the critics, that will be much better because it will give us the right suggestion. We can grow in a positive way, and of course they will give the truth one. It will not be that friend hai to sahi dengi, you know. So it's got to be like that. अच्छा, कोई और अब ऐड करना चाहे कि आप कॉम्प्लीमेंट लेना चाहेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट देता है उनके पास जाएंगे या जो क्रिटिक करता है उनके पास जाएंगे?
एनीवे अब देखिएगा कि हमें जो रिसर्च है या स्टडीज है वो हमें कहाँ लेके जाते हैं कि हमें किस बंदे के पास जाना चाहिए. There is a critique, there is a compliment. The amalgamation of both the things is feedback actually. So feedback, when it comes to critique, it is negative and it's not for improvement. अगर वो compliment की बात आती है तो that is positive और वो भी again improvement के लिए नहीं है. तो feedback actually है क्या कि ये critique और compliment की उससे मिल के है कि आपने कुछ अच्छा बोला, उसकी तारीफ की बच्चे की, पॉजिटिव एरियाज आपने बता दी, फिर आपने उनको क्रिटिक किया जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. इस चीज को, इस फीडबैक को जिसमें बहुत कॉम्प्लीमेंट्स और क्रिटिक शामिल है, इसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का नाम लेते हैं. तो इट्स नॉट ओनली द गुड थिंग एंड इट्स नॉट ओनली द बैड थिंग, it's something that is helpful, that is mixed up with the critique and compliment. So what is feedback now? Basically फीडबैक जो है वो फीडबैक है, वो एक इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन है या कोई परफॉर्मेंस है, उसका इट्स अ कंसीक्वेंस ऑफ दैट थिंग, अ परफॉर्मेंस कि यूजफुल इंफॉर्मेशन है. अगर किसी बच्चे ने कोई परफॉर्म किया है या आपने पर्सनली कोई आपने असाइनमेंट डेवलप किया है, कोई प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया है, तो उस जो प्रोडक्ट पे, उस टास्क पे या प्रोसेसेस पे जो इंफॉर्मेशन डिराइव होता है, एनालाइज करके आ जाता है, उस चीज को हम फीडबैक कहते हैं. जरूरी नहीं है कि फीडबैक का मीनिंग ले ले तो हम सिर्फ क्लासरूम की हद तक रहते हैं. जरूरी नहीं है वो क्लासरूम हो, या आपका टीचर हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, बच्चे का दोस्त हो सकता है, हमारे कलीग्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं जिसको हम बच्चे को रेफर करते हैं कि आपने ये जो आपने किया है ना काम, इसको फलाना बुक में देखें, लाइब्रेरी में देखें, आप उसको रेफर करें. तो वो जो बच्चा फीडबैक लेगा उस बुक से फीडबैक लेगा. पेरेंट्स होते हैं, बच्चा मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद होता है, हम खुद होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे हम फीडबैक लेते हैं. जो क्रिटिकली जो एक क्रिटिकल जो जिस लेंस के साथ देखा जाता है, उस जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड होता है. फॉर एग्जांपल, सपोज आई टेल अ जोक, what is the purpose or what is the objective of the joke? वो जो उसका ये है कि that is laughter, या to what extent वो जो लोग हैं जिनके सामने सुनाया गया, जिनको सुनाया गया है, वो हंसते हैं. ठीक है, अब उस पे जो उसका जो इफेक्ट है उस जोक का, या उसका काइंड ऑफ इफेक्ट है, दैट इज एक्चुअली फीडबैक. वो जो जोक सुनाता है उसके लिए वो एक फीडबैक है. लेकिन अगर हम उस पे कहते हैं कि फीडबैक कुछ ऐसे देते हैं कि यू नीड टू वर्क ऑन योर टाइमिंग, दैट्स नॉट फीडबैक एक्चुअली. अगर हम कहते हैं कि नहीं, आपने जो जोक सुनाया गलत टाइम पे सुनाया है, ये एक एडवाइस है जो हम जो बेसिकली जो जो जोक जिसने बताई उसको वो एडवाइस नहीं चाहिए, उसको फीडबैक चाहिए. और हम लोग इस चीज पे आगे आप डिटेल में भी हम बात करेंगे, एडवाइस और ये प्रेज क्या होता है, ब्लेमिंग क्या होती है, पर्सनल ओपिनियंस क्या होते हैं. तो व्हाट फीडबैक एक्चुअली, इट्स अ कंसीक्वेंस ऑफ सम परफॉर्मेंस, सम एक्टिविटी, अ टास्क. अगर हम इस फीडबैक को इफेक्टिव करना चाहें तो व्हाट इज बेसिकली इफेक्टिव फीडबैक? द इफेक्टिव फीडबैक, सी, इट शुडंट बी लेबर इंटेंसिव, इट शुड बी स्पेसिफिक. द फीडबैक बिकम्स इफेक्टिव जब उसको हम टाइम पे दे दें, जब बच्चे को जरूरत हो उसको दे दें. अगर हम उसको हफ्ता, महीनों बाद, काफी दिनों बाद देते हैं तो वो अपना जो पर्पस है वो खो देता है. बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ओवरली थिक ना हो, बहुत ज्यादा हमने लिखा हुआ ना हो, बहुत ज्यादा हम बच्चे को या किसी सामने वाले को इतना ज्यादा ना बोले कि जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो कहीं खत्म हो जाए. ये बेसिकली हम वो बच्चे को प्रोवाइड करें, एक इंसाइट दे दे बच्चे को, या जो जिसको हम फीडबैक दे रहे हैं कि वो उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए. ओके, ये तो दिस इज ट्रू कि जब फीडबैक देते हैं तो एट इट्स बेस्ट ये पावरफुल टूल है टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट. लेकिन डिपेंड करता है कि हमने फीडबैक कहाँ से लिया है, किस तरह का दिया है. उस फीडबैक एट इट वर्ड्स समटाइम्स ये होता है कि बच्चा या कोई भी किसी ने फीडबैक दे दिया, जैसे टेनिस बॉल से हिट नहीं किया, वैसे ही जाए वॉशरूम में या कहीं पे भी जाके रोने लगे.
तो इतने एक्सट्रीम एंड्स पे जाता है ये फीडबैक। सो इसीलिए जब हम लोग फीडबैक देते हैं तो बहुत केयरफुली अल्फाज का इस्तेमाल हम केयरफुली करते हैं और जुमलों का इस्तेमाल केयरफुली करते हैं और उसको देखते हैं कि शुरू में हमने क्या बोलना है, फिर क्या बोलना चाहिए, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ आना चाहिए, कितना ज़्यादा बोलना चाहिए। ओवरऑल अगर हम इस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें फीडबैक के, तो इसके एडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि इससे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। रिसर्चर्स कहते हैं कि जितना आप बच्चे को इंगेज रखते हैं, जितना आप असाइनमेंट देते हैं और उसके बाद उन असाइनमेंट्स पे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जैसे हम लोग नहीं करते हैं, कोई भी हम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो वर्जन 1 होता है, फिर उसके बाद वर्जन 2 होता है उसका, फिर वर्जन 3 होता है, फिर 4 होता है। तो ये जो वर्जन्स बेसिकली होते हैं, या वो वर्जन पे हम उन वर्जन्स पे या सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू हम उसको देखते हैं, फीडबैक अपने आप को सेल्फ फीडबैक के थ्रू हम नए इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है, या फिर किसी पीयर से भी हम फीडबैक लेके उस डॉक्यूमेंट मेकिंग के दौरान कॉन्टिन्यूअस फीडबैक लेते हैं। तो वो जो कॉन्टिन्यूअस फीडबैक एंड कॉन्टिन्यूअस जो मेकिंग है वो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है। चेंज आता है इंसान की ओवर द टाइम, जो करियर है उसमें तब्दीली आती है, जितना ज़्यादा वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा ओवरऑल उसकी जो पर्सनालिटी मेकिंग है उसमें तब्दीलियाँ आएंगी, उसकी बिहेवियर में तब्दीलियाँ आएंगी, उसकी स्किल्स में तब्दीलियाँ आएंगी, उसके नॉलेज में तब्दीलियाँ आएंगी। इट्स एन अचीवमेंट बिकॉज जब बच्चे को फीडबैक देते हैं तो उसको फील होता है, ही फील प्राइड कि इससे एक उनको पता चलता है कि ये एरिया अच्छे काम है जो मैंने किए हैं, तो वो प्राइड फील करता है, वो एक अचीवमेंट के तौर पर लेता है। डिफिकल्ट सिचुएशंस में फीडबैक लेना, कलीग के पास जाना और उससे कहना कि ये लेसन प्लान मुझसे नहीं बन रहा है, इसमें कोई अच्छी सी एक्टिविटी तो बता दो यार, है ना। तो इन सिचुएशंस में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। लेकिन देयर आर एडवांटेजेस, देयर आर डिसएडवांटेजेस हर चीज के। तो इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि अगर इसको हम इफेक्टिव ना बनाए, टाइमली ना दे दें और इसके लैंग्वेज पे हम बात ना करें, इसके लैंग्वेज के बारे में ख्याल ना रखें, तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। डिजास्टर होता है जब ये इनइफेक्टिव रहता है। और जब इनइफेक्टिव फीडबैक मिलता है तो जो रिसीवर होता है उसमें एंजाइटी आती है, परेशान हो जाता है और कहता है कि भाई इसमें तो मुझे कोई तब्दील मुझे करना ही नहीं है, सब कुछ गलत है, मैं बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ उसके पर्सन पे अटैक हो सकता है, पर्सनल एक अटैक उसे फील होता है। फीडबैक का पर्पस क्या है? ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि फीडबैक के पर्पस हमारे पास क्या है। Give me a second, please, a minute. Okay. The purpose of feedback is 3 चीजें हैं हमारे पास, वो बच्चे हो या टीचर हो, कि पहला ये काम है कि या बच्चा या मैं, where am I going और my student is going। जिस तरह हम लेसन प्लान बनाते हैं कि जिस पहले ऑब्जेक्टिव्स हम डिजाइन करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं और उस पर हम असेसमेंट टूल डेवलप करते हैं, बिल्कुल इसी तरह फीडबैक जब हम दे रहे होते हैं तो तब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पर्पस है, जो मेजर जो गोल है या ऑब्जेक्टिव्स अगर हम ले लें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बच्चे की, क्या वो जो पीस ऑफ राइटिंग है या पीस ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोसेस है या जो मॉडल दिया गया है वो क्या अचीव कर रहा है उस गोल को, उस उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा रहा है, उनको अचीव कर रहा है। उस सेकंड ये है कि मजीद उसको क्या प्रोग्रेस करना चाहिए उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मुझे जैसे मेरी टीचिंग है क्लासरूम में, उस टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए उसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ये टॉपिक था, ये ऑब्जेक्टिव्स थे और मेरी टीचिंग अच्छी नहीं गई, अचीव नहीं कर सकी, तो उसके लिए मुझे क्या करने चाहिए, वो कौन से प्रोग्रेसेस है, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको मुझे करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, जो फीडबैक शुड रिस्पॉन्स इज वायर टू नेक्स्ट नाउ। तो आप जो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक का अगर बच्चे की समझ में नहीं है, पूरी क्लास की समझ में नहीं आया है, तो मुझे ये देखना है कि वो एक्टिविटी गलत गई, मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से ये सही नहीं हुआ, आप मेरे चाहिए कि इसकी जगह मैं ये कर लूँ, दैट इज फीड फॉरवर्ड। मैं ये न्यू ऑब्जेक्टिव पर इसको ज्यादा न्यू टेक्निक यूज करूँ, इसको कॉन्टेक्सचुअलाइज करूँ और स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज इजी रखूँ। तो इस तरह ये मैं अपना जो मेजर जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ये मैं अचीव कर पाऊंगी या पाऊंगा। फीडबैक के लेवल्स हैं,
पहला जो लेवल है वो दैट इज टास्क लेवल। टास्क लेवल में हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है वो उस टास्क के प्रोडक्ट के हवाले से ओवरऑल अमूमन हम लोग वैलिडिटी में भी देखते हैं कि इसमें कि फेस देखते हैं कि ओवरऑल क्या है इसमें जो सही क्या है गलत क्या है एक सरसरी रीडिंग की उसमें हम देखते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम मॉडल्स के तौर पे देखते हैं कि मॉडल्स में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया है आपने और उन्होंने कोई वो मॉडल डिजाइन किया है तो उसका जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है या आर्टिकल जब पीस ऑफ राइटिंग है उस प्रोडक्ट पे हम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके उसमें हम लोग इसका जो फीडबैक होता है वो कुछ ऐसा होता है कि यू नीड टू अगर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बारे सुलह हुदैबिया के बारे में बात करते हैं कोई सवाल है तो आप उनसे पे कहते हैं सिंपली फीडबैक देते हैं कि गिव मोर एग्जांपल ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ठीक है लेकिन इसके उसमें है कोई इसके ये इफेक्टिव फीडबैक नहीं है लेकिन वो इसलिए नहीं है कि जो एग्जाम्पल्स उसने दी थी उसमें प्रॉब्लम क्या था वो हाईलाइट नहीं हो रहा है इसमें सिंपली हमने उनके प्रोडक्ट के बारे में कहा है कि इसमें मजीद कुछ एग्जांपल्स ऐड करें। सेकंडली ये है कि जो एग्जांपल है देखें यू हैव रिटन द फर्स्ट थिंग फर्स्ट बट आफ्टर इट बिकम्स मॉडल्ड you need to go through what you have written number the order in which things happen and rewrite them in that order। ये जो प्रोडक्ट का है इसमें बच्चे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जिसमें हम लोग टास्क लेवल पे बच्चे को हम देते हैं जबकि जो प्रोसेस लेवल है प्रोसेस लेवल में हम बच्चे को फीडबैक देते हैं कि जो प्रोसेस उसने यूज किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि योर राइटिंग विल मेक मोर सेंस इफ यू यूज द स्ट्रेटजीज वी टॉक्ड अर्लियर बिकॉज आप रेफर कर रहे हैं उनको ये ज्यादा इफेक्टिव फीडबैक है एज कंपेयर टू जिस प्रोडक्ट लेवल पे हमने बात की थी। या इसका देखें यू आर आस्क्ड टू कंपेयर दीज आइडियाज एक दो आइडियाज आपने दे दी आपने कहा कि आपसे कहा था कि आप इस आइडियाज को कंपेयर करें यानी कि यू कुड हैव ट्राई टू सी हाउ दे आर सिमिलर डिफरेंट एंड हाउ दे आर रिलेटेड टुगेदर। सी हम इस चीज में थोड़ा सा स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं दिस इज मोर स्पेसिफिक देन जो प्रोडक्ट लेवल का जो फीडबैक हम बच्चे को देते हैं। सो दिस जो प्रोसेस लेवल की बात करते हैं दिस इज मोर ऑफ इफेक्टिव देन प्रोडक्ट लेवल। सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं कि रिसर्चर्स कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन का जो पार्ट है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा सेल्फ मॉनिटर करेगा है ना सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग की तरफ जाएगा अपने प्रोसेस और अपने किए हुए डेवलप किए हुए टास्क को खुद मॉनिटर करेगा तो उसको उतनी ही ज्यादा वो अपनायत भी होगी उस पीस के साथ उस राइटिंग के साथ उस प्रोडक्ट के साथ प्रोसेसेस के साथ। सेकेंडली वो ना बैक एंड फोर्थ होगा तो उसका जो एक मेटा कॉग्निशन है क्वेश्चन का क्वेश्चन कि भाई ये मैंने नहीं किया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ तो मेटा कॉग्निशन में ये इसको डेवलपमेंट होगी इसको हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें यू चेक योर आंसर विद द रिसोर्स बुक जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे मेंशन किया था कि आप उनको रिसोर्स बुक रेफर कर लें इसमें फाउंड यू गॉट इट रॉन्ग एनी आइडिया ऑफ व्हाई यू गॉट इट रॉन्ग। So you detected the error. I mean, you detected the error. You have asked the student to find out the error. What strategy did you use? Think it yourself. Can you think of another strategy to try and how else you could work it out if you are correct? So this is you are engaging the student with the resource thing. अच्छा इसमें जो रिसोर्स है ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि बुक हो इसमें वीडियोस भी हो सकती हैं ऑडियोस भी हो सकती हैं हमारे पास इंटरनेट पे इतनी चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे आप उनको वहां पे रेफर कर सकते हैं कि आप वो वीडियो देखें आप देखें कि उसमें किस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है उसको फर्दर आप इम्प्रूव कैसे करते हैं या फिर आपके प्रोडक्ट में क्या इश्यूज हैं प्रोसेसेस में क्या इश्यूज हैं। इसको थोड़ा सा हम क्विक करेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक में कि इनफॉर्मल फीडबैक एंड फॉर्मल फीडबैक। इनफॉर्मल फीडबैक जो हम लोग अमूमन नॉर्मली क्लासरूम्स में देखते हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक्स का ही भी हिस्सा है ये हाई स्टेक नहीं होता इसका स्टेक लो होता है जिसमें जैसे ये मार्क जो असाइनमेंट्स होते हैं उनका हिस्सा नहीं होता है जबकि फॉर्मल जो फीडबैक है वो मार्क जो असाइनमेंट्स हैं जिसमें आप उनसे टेस्ट ले रहे हैं क्लासरूम में और उनका जो रिजल्ट आता है उसका जो एक अल्टीमेट आप उन पे जो फीडबैक देते हैं वो फॉर्मल है दिस इज मोर ऑफ हाई स्टेक। formative feedback ongoing formative itself is open and summative feedback
एंड ऑफ द जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है, हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, लेकिन बीइंग असिस्टेंट के खातून मेरा एक अपना व्यू है कि देयर शुड बी अ फीडबैक given to students end of the examination, when it is standardized examination, when it is board वाले examinations. स्टूडेंट पीयर फीडबैक जिसमें बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अमूमन हम क्लासरूम्स में ये कर भी लेते हैं क्योंकि जो होमवर्क है उन पे वो फीडबैक देते हैं कि भाई उन्होंने सही किया, गलत किया, क्या किया, उनके दोस्त के क्या आइडियाज हैं, एंड स्टूडेंट सेल्फ फीडबैक. प्रिंसिपल्स ऑफ फीडबैक excuse me. We have several the principles of feedback. Like the first thing is, to helping to clarify what good performance is. Students, they we need to give them some standards. उनको कि एक certain एक achievement दे दें, criteria दे दें, कि उनको बताएं कि ये एक सेट जो है ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आपने दिया है, जो भी आपने टास्क उनको दिया है, उसका एक हाई जो उनका स्टैंडर्ड है, ये इट शुड मीट हियर, इट शुड मीट टू दिस सर्टेन थिंग, सर्टेन टास्क. या उनको कहें कि इनमें हम ये कहते हैं कि जब हम उनको टास्क दे रहे होते हैं बेसिकली, या उनको फीडबैक दे रहे होते हैं, तो उसमें उनको क्लैरिटी दे दें, उनको क्लियर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए फीडबैक के प्रिंसिपल में. फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट रिफ्लेक्शन, कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं जो भी हमने ये टाइप्स और इसमें हमने डिस्कस भी कर ली, इससे फीडबैक इटसेल्फ क्या होता है इसमें, कि प्रिंसिपल, इसका सेकंड प्रिंसिपल ये है कि हम कोशिश करें कि बच्चे को जितना ज़्यादा सेल्फ असेसमेंट में या रिफ्लेक्शन में उनको इंगेज करें, ताकि जितना ज़्यादा उनको हम रिफ्लेक्शन में उनको इंगेज करेंगे, जितना ज़्यादा वो पर्सनली वो देखेगा, अपने आप को मॉनिटर करेगा, वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा उसके लिए. The third thing is delivering high quality information to students about their learning. ये जो हम उनको एक देते हैं इंफॉर्मेशन फीडबैक, ये एक बच्चा अपना एक स्टैंडर्ड रखता है कि मुझे टीचर ने ये फीडबैक दिया है, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है. अब इस स्टैंडर्ड पे में वो अपने आप को भी इवैल्यूएट करता है. तो इसलिए जो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है लर्निंग के दौरान, वो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, प्रायोरिटाइज करें कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पीस ऑफ राइटिंग में और क्या चीज़ लेस इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँ कि चूंकि हमारा जो फर्स्ट जो सेगमेंट होता है इसमें वेबिनार का, इट इज द जूम अलाउज फॉर 40 मिनट्स, सही. तो ये 1.5 मिनट के बाद हमारा ये सेशन स्टॉप हो जाएगा. तो हमारा जो लिंक आपको प्रोवाइड किया है, जो आईडी है, आप उसी पे ही वापस लॉगिन हो जाएं. तो जहाँ पे हम स्टॉप करेंगे वहां से आगे हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे. Encouraging teacher and peer dialogue around learning. हम अमूमन फीडबैक वन साइडेड हम करते हैं. जैसे मैंने फीडबैक दे दिया, अब मेरा काम फिर पैसिव हो गया, या पीयर ने फीडबैक दे दिया, पीयर का काम पैसिव हो गया. इस चीज को डिस्करेज करें. इनफैक्ट इंकरेज ये करें कि जो डिस्कशंस आप जनरेट करें या वर्बल फीडबैक के दौरान या रिटन फीडबैक के दौरान, तो वो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान वो एक डायलॉग को एनकरेज करें, डिस्कशन करें. आप फीडबैक दे दें और बच्चे से पूछें कि वो क्या राय रखता है इस हवाले से, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप अपने पीयर से या बच्चे एक दूसरे से वो फीडबैक दे दें. तो वो सिर्फ रिसीविंग के एंड से ना हो, रिसीवर जो है अपने एंड से डायलॉग क्रिएट करे कि उसके समझ में फर्दर क्या नहीं आया है, या उसके आइडिया, वो जो आइडिया उसने प्रेजेंट किया था उसका बिहाइंड क्या लॉजिक था. सो इट शुड बी मोर ऑफ डिस्कशन. तो जितनी ज्यादा डिस्कशन उस फीडबैक में भी जनरेट होगी, उतनी ज्यादा ये बच्चे की, नॉट ओनली बच्चे, टीचर, स्टूडेंट या पेरेंट, चाइल्ड, जो रिसीवर एंड गिवर है, दोनों के एंड से दोनों की लर्निंग उस We were talking about the principles of feedback, and we were providing opportunities to close the gap between current and desired performance. Students should know कि जहाँ पे हम लोग वर्जन 1 और वर्जन 2 की बात हम कर रहे थे कि जो उनकी करंट जो
हाँ, इंफॉर्मेशन है उनके पास जो करंट उन्होंने स्टेज 1 पे जो उन्होंने डेवलप किया हुआ है असाइनमेंट या कोई पीस ऑफ राइटिंग उनमें, और जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उनको बेसिकली कहाँ जाना चाहिए, किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस हो जो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए, तो वो जो गैप है दैट शुड बी रिड्यूस्ड बाय दिस फीडबैक। सेकेंडली, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि इसमें अक्सर हम लोग इस चीज को सिर्फ एम्फेसाइज करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ वन साइडेड हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, बट दिस मस्ट बी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द टीचर्स एज वेल, सो दैट दे हाउ टू इट हेल्प देम टू शेप देयर टीचिंग, कैसे वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करे, किस तरह के नए वो इनोवेटिव टेक्निक्स लेके आए, आइडियाज लेके आए, कंटेक्सचुअलाइज आइडियाज लेके आ जाए, जिससे जो बच्चा जो समझ नहीं पाया है या जो असाइनमेंट अगर खराब करके ले आया है उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो अपनी टीचिंग कैसे करे कि उसकी बच्चे की इंप्रूवमेंट हो। तो इस तरह फीडबैक का मेजर जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि वो टीचर्स को भी इन्फॉर्म करे अपनी टीचिंग के हवाले से। लैंग्वेज ऑफ फीडबैक, the language of feedback shouldn't be too vague, like ये ना हो कि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाए कि बच्चे टू वेग इतना टू वेग ना हो कि वो बच्चे के पास लिमिटेड नॉलेज हो to move on, or it shouldn't be too complex that students can become confused or overwhelmed by the content जो उसको provide किया गया है in the form of feedback. Yeah, it shouldn't be highlighting only the errors, yeah, it shouldn't be only highlighting the जो set criteria है जो उसको उसने meet किया है, ये चीज नहीं होना चाहिए लैंग्वेज में। टू क्रिटिकल ना हो, टू क्रिटिकल होगा तो बच्चे को लगेगा कि भाई उसने जो काम किया है वो तो भाई उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे टीचर, वो तो कहीं मतलब वो तो है ही नहीं, उसका कोई फायदा ही नहीं है, उसने गलत किया है। या फिर ओवरली कॉम्प्लीमेंट्री ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि इससे क्या होगा कि बच्चे को अगर ओवरली कॉम्प्लीमेंटेड हो तो वो ज्यादा एक्साइटमेंट पे बच्चा भूल जाएगा कि या उसको इग्नोर करेगा कि जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो कौन सी हैं। टू क्रिटिकल में भी वो भूल जाएगा कि वो परेशान हो जाएगा और उसको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आएंगे। When it is delivering a feedback, written feedback के एडवांटेजेस ये है कि इसमें क्लियरली हाईलाइट कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ्स और उसके वीकनेसेस क्या हैं, और रिटन फीडबैक का एक इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चा रीड करे, रीड करे, उसको रेफर करे, जब अपना नया असाइनमेंट लिखने बैठ जाए तो उसको ज्यादा रेफर करे। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि जब बाज़ औक़ात हमारा ये होता है कि हम बहुत ज्यादा लिखने के शौकीन होते हैं, जब बहुत ज्यादा लिखने बैठ जाते हैं तो बच्चा वो लॉस करता है ना कि वो जो भाई उसने एक्चुअल जो फीडबैक था वो क्या था। फीडबैक लॉस तब होता है जब वो टू मच राइटिंग के बीच में वो रीड करते उसको जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो उसको एक्चुअली वो डिफिकल्ट फील करता है, उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं करता। एंड व्हेन इट इज वर्बल फीडबैक एडवांटेजेस ये है कि ये एक इमीडिएट होता है और वो एक क्लैरिफिकेशन और रिकन्फर्मेशन का एक टाइम मिलता है जो रिसीवर है उसे। जैसे आपने उसे फीडबैक दे दिया कि वर्बली आपने दे दिया कि ये आपके जो एरियाज इम्प्रूवमेंट है ये है, अगर उसे समझ नहीं आती वो फिर से पूछ लेगा आपसे, उसके पास टाइम होगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, सारे बच्चे हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कि फेस टू फेस फीडबैक दे दें। फेयर ऑफ जो फीडबैक है वो तकरीबन हर एक में ही होता है, हर कोई वेलकमिंग नहीं होता है फीडबैक रिसीव करने के लिए। तो उसको एक जो खौफ होगा कि भाई अभी कुछ बोलने जा रहा है टीचर, या अभी कुछ बोलेगा कि नहीं ये मेरा काम अच्छा नहीं हुआ, अभी कुछ डांटेगा, तो इस फियर में ही एंजाइटी में ही वो उसका जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसको जो चीज एक्चुअली लेनी चाहिए थी, जिस पर उसको काम करना चाहिए था,
वो लॉस हो जाएगा और उसके पास जो रेफरेंस पॉइंट है, जो रेफरेंस मटेरियल है, वो भी नहीं होगा और भूल जाएगा। जब तक वो रिटर्न में उसके पास ना हो, वो वर्बली द स्टूडेंट और जो रिसीवर है वो भूल जाएगा। अब बात यह है कि किसी को हर्ट किए बगैर, किसी को लैंग्वेज का ख्याल रख के हम फीडबैक कैसे देते हैं। जो अब से पहले हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, कि आस्क योर स्टूडेंट्स, जब आप फीडबैक दे रहे हैं तो फीडबैक देने से पहले, वेदर रिटन हो या वर्बल हो, आस्क योर स्टूडेंट्स टू रीड, टू रीचेक द प्रोडक्ट ही और शी हैज डेवलप्ड। उससे ये होगा कि बच्चा पहले रेडी हो जाएगा एक ओपन माइंड के साथ, अरे हाँ मैंने तो ये लिखा था ऐसे इस पे, अब इस ऐसे में उसे खुद इम्प्रूविंग एरियाज पहले नजर आएंगी, तो वो एक प्रिपेयर्ड माइंड के साथ टीचर के पास जाएगा और वो इजिली एक्सेप्टेंस उसमें डेवलप हो जाएगी इसमें, और इजिली सेटल डाउन हो जाएंगी जो फीडबैक अपने टीचर से बोलेगा। वेल फीडबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फीडबैक यहाँ पे इट्स नॉट अ ग्रेड और स्कोर, इट्स नॉट जस्ट ये 80/100 नहीं है फीडबैक, या वो 0/10 फीडबैक नहीं है। इसमें साथ में हम वो 0 क्यों आया है और 80/100 में से जो 20 नंबर रहे हैं, वो 20 नंबर कहाँ है, किन एरियाज में, उन वो जो वो कौन से एरियाज हैं, इंप्रूविंग एरियाज हैं, या कौन से सवालात के जवाबात हैं वो जो नहीं दे सका है बच्चा, जिससे उसके 20 नंबर कम आए हैं। Praise, it's not only about complimenting, it's not only about nice job, good work, bravo, keep it up, well done, फिर स्टॉप, इट्स नॉट अ प्रेज। या आप उनको पर्सनल ओपिनियन बताते हैं कि जॉन, या आप उनसे कहते हैं कि मारिया, आई डोंट लाइक द वर्ड चॉइस, या आई एम इम्प्रेस्ड बाय द एसे यू हैव डेवलप्ड, ये पर्सनल ओपिनियन है। आप एक उनको स्टैंडर्ड दे देना, एक जो सेट जो क्राइटेरिया है, जो एक परफॉर्मेंस उसका होना चाहिए, वो उस स्टैंडर्ड पे काम करें। आपके पर्सनल ओपिनियन पे या मेरे पर्सनल ओपिनियन की जरूरत नहीं है उसे। He needs, a child or a student needs, the receiver needs a feedback, not a personal opinion, या एडवाइस नहीं चाहिए। जहां जॉब के एग्जांपल में मैंने आपसे कहा था कि द टाइमिंग शुड बी चेंज्ड, इट्स एन एडवाइस। अब टाइमिंग के हवाले से जो फीडबैक गिवर है उसको बताना चाहिए एग्जैक्टली कि किस टाइम पे वो लतीफा सुनाना चाहिए था, या यहाँ पे है कि द कंक्लूजन कुड हैव बेटर इफ यू हैव एडिड अनदर एग्जांपल। आप फीडबैक गिवर है उसको बताना होगा कि अनदर एग्जांपल से क्या मतलब है, यहाँ पे किस तरह के एग्जांपल। या इवैल्यूएशन नहीं है कि जिसमें हम करें कि इनकरेक्ट स्पेलिंग, रॉन्ग सेंटेंसेस, ये सिर्फ नहीं है। द एक्चुअल पर्पस ऑफ फीडबैक इज टू मेक द स्टूडेंट थिंकिंग, टू मेक हिम मोर थिंक अबाउट द वर्क ही हैज डेवलप्ड। अच्छा, अगर हम प्रेज को ऑफर फीडबैक में चेंज करें तो कुछ ऐसा होगा, एग्जांपल देखें, इसका मॉडिफाइड होगा। नाइस जॉब डियर Noreen, the opening statement of your article grabbed my interest as a reader. However, see, आपने praise दे दिया, compliment दे दिया, however, it was very effective to begin your write-up with a provocative question or a real life event. ये उसका feedback हो गया। आपने उसको नाइस जॉब करके स्टॉप नहीं किया, उसको जो एक्चुअली चाहिए वो आपने फीडबैक दे दिया। एडवाइस को अगर हम फीडबैक में कन्वर्ट करें, या वो कुछ ऐसे होगा जैसे योर कंक्लूजन वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैव इंक्लूडेड अनदर एग्जांपल। इसका मॉडिफाइड ये होगा कि योर राइटिंग वाज क्लियर एंड योर अकाउंट ऑफ द टॉपिक वाज अ हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग, नो डाउट, बट the supporting statements you supplied looked unfinished and rough. As a reader, I was not convinced by them. Your conclusion would have been better if you included another example. तो वो जो एक example दिया था उससे वो जो purpose है वो fulfill नहीं हुआ। Opinion को अगर हम इसको modify करें, like is this the best word choice, ईसा? इस opinion को अगर हम करें कि is this the best word choice, Isa? Think back to the readings from this week and be sure to use terminologies from the field, from the book or from the articles जो हमने क्लासरूम में आपके साथ शेयर किया है।
दिस इज हाउ वी चेंज। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपको जो रिसर्चर्स कहते हैं कि जो फीडबैक जो गिवर्स है, वैसे तो फीडबैक के डिफरेंट उसमें है टेक्निक्स हैं जिसमें हम दे देते हैं। जो एक अच्छा टेक्निक माना जाता है, वो इफेक्टिव जो टेक्निक माना जाता है, दैट इज सैंडविच अप्रोच टू फीडबैक। सैंडविच अप्रोच, you come up with the praise through identifying the strengths, ये आपके अच्छे points हैं, and then you bring the improving areas or developmental areas that is needed, and you close the sandwich with the opinion, for the improvement, the areas for the improvement, and you close the overall feedback with a positive note. अब इस सब में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ट्राई टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एज क्रिस्पी एज पॉसिबल, ताकि जो रीडर है उसका टाइम बच जाए। देयर आर सम मोर टिप्स, लाइक बी स्पेसिफिक एज पॉसिबल। आपने इसको जनरली नहीं लेना है, जो टारगेट एरिया है, जो इम्प्रूविंग एरिया है, उस पे ही आपने स्टिक रहना है। जितने जल्दी आप बच्चे को फीडबैक देंगे, जितने जल्दी हम जिसको फीडबैक रिसीवर है उसको देंगे, तो वो उतना ही बेहतर होगा। अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है अपने कलीग के साथ और उनसे कहा इसमें मुझे फीडबैक दे दें, और अगर वो मुझे फीडबैक देते हैं 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद, जबकि मेरा माइंड उसी वक्त प्रिपेयर्ड है, जो कंटेंट जो आइडियाज है वो फ्रेश है मेरे माइंड में, लेकिन मुझे 2 हफ्ते बाद मिलते हैं तो मैं रेडी नहीं हूँ, वो मेरे लिए इफेक्टिव नहीं है। हो सकता है उस 2 हफ्ते के बीच में मैंने सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू, सेल्फ मॉनिटरिंग के थ्रू उस पर मैंने खुद ही काम किया हो, खुद ही इम्प्रूव किया हो। वेल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि सेल्फ मॉनिटरिंग करें, हम अपने जो टास्क हैं उसको खुद ही इवेलुएट करके उस पर अपने आप को फीडबैक देते रहें। कि आप ये देखें, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लर्नर जो है कितना, जो उसका जो ऑब्जेक्टिव उसने सेट किया है उसकी अचीवमेंट की तरफ कितना जा रहा है, एंड वो चीज एड्रेस करें। प्रेजेंट फीडबैक केयरफुली। जो अभी हमने पार्सल वाले की एग्जांपल ली, सैंडविच की बात की, डायरेक्ट पर्सनल अटैक ना हो, ये या डायरेक्ट हम उनको हार्श ओपिनियन ना दे दें, या उनको ये ना कहें कि आपका गलत है ये सही है, बल्कि उसको एक बहुत खूबसूरती से जो एग्जांपल्स हमने शेयर किए हैं, इस तरह कोशिश करें फीडबैक कुछ इससे मिलता जुलता हो। लर्नर्स इन द प्रोसेस, It's not only feedback when it is teaching, when even जब मैं खुद टीचर भी मैं काफ़ी अर्सा रही हूँ, तो मेरे जो मेंटोर्स थे वो तब एक आइडिया बताते थे कि did you ask your students कि उन्होंने कल क्या पढ़ना है, पहली बात। दूसरा वो बोलते थे did you ask your students कि कल जो वो पढ़ेंगे उनके टॉपिक के हवाले से उनके माइंड में कोई आइडिया है कि कोई किस तरह की एक्टिविटी की जाए। So when it is teaching and learning, the teacher and student वो पैरेलल चलते हैं। जो एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है टीचर, he should be involving learners in those activities. Similarly with the feedback, आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे से पूछें कि डू यू एग्री विद दिस थिंग जो मैंने आपको फीडबैक दिया है, व्हाट इज योर आइडिया, और हाउ डू यू रिफ्लेक्ट माय फीडबैक, Am I right? Do you think this feedback is right? Do you think कि इसको इस तरह ये improving areas आप में हैं? So इस तरह learners के confidence को build करने के लिए उनको भी involve करना चाहिए, उनके this is very important. Some more tips are schedule a regular time for providing feedback. Maybe आप में से बहुत सारे टीचर्स के माइंड में एक बात ये होगी कि जब हम इतना लेसन प्लान बनाते हैं, दिन में 6 क्लासें पढ़ाते हैं, है ना, तो या इतने 6 आवर्स में, और अभी तो पेंडेमिक में हमारे पास 3 घंटे हैं, तो इज दैट पॉसिबल? वो होगा कि भाई हम कैसे मैनेज करें कि हर बच्चे को फीडबैक दे दें। कीप वन थिंग इन माइंड, दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप हर बच्चे को हमेशा फीडबैक दे दें, या हर बच्चे का जो टास्क है उस पर आप हमेशा फीडबैक दे दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप फीडबैक दे दें तो कोई सा भी, जैसे आपके पास राइटिंग है, कोई सा भी राइटअप है, तो इस राइटअप पे जरूरी नहीं है कि आप वन गो में पूरा आप डिटेल देखें, आप उसकी राइटिंग भी देखें, राइटिंग स्टाइल देखें, उसमें सेंटेंसेस भी, ग्रामर भी देखें, ओवरऑल उसके क्या आइडियाज हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं, क्लोजिंग क्या है, बीच में क्या आइडियाज हैं, एग्जाम
इट्स नॉट नेसेसरी आप वन गो में सारा देखें आप, क्योंकि ये तो ओवरवेलम हो जाएगा जो रिसीवर होगा। इसलिए वी कम अप विद द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि ओवरऑल कैसा है, ओवरऑल इसका जो टास्क या प्रोडक्ट है वो ओवरऑल कैसा दिया है। सो बच्चा एकदम इनटू अ पूल ऑफ इम्प्रूविंग एरियाज वो ना उसको ना जंप मारने दें। इसलिए रेगुलर टाइम से मुराद अभी ये भी है कि आप अपने रूटीन के मुताबिक देखें कि किस बच्चे को ज़्यादा फीडबैक की ज़रूरत है, फिर किस बच्चे को कम फीडबैक की ज़रूरत है। इसी तरह कभी आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होगी, कभी आपको कम लिखने की ज़रूरत होगी। टाइम को इसीलिए एक वाइजली हम, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने टाइम को वाइजली इस्तेमाल कर सकते हैं। फीडबैक टाइम को, जैसे एडिटिंग और करेक्टिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे हम बच्चे से कहें कि ये स्पेलिंग गलत है, ये ग्रामर स्ट्रक्चर गलत है, ये जो एडिटिंग और करेक्टिंग या प्रूफ रीडिंग वाली बात है ना, इसके बहुत सारे हमारे पास वो आए हैं, क्या बोलते हैं, ये टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे के स्पेलिंग हो करेक्ट करें तो आस्क द बच्चा कि वो कि बच्चा जो है वो खुद करेक्ट करे, वो खुद रेफर करे कि किसी स्पेलिंग में अगर उसको कोई गलती की है या कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है तो वो बुक्स को रेफर करे या खुद रेफर करे, वो उसको इन्वॉल्व करें कि वो करेक्ट करे। आपको हर चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत भी नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फीडबैक है उसका मेजर पर्पज ही ये है कि हम बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व करें, सोचने पे मजबूर करें। और हमारा जो इनफैक्ट ये जो है ना, ये जो टिप है, ये जो फोकस ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये कोर है। दिस इज द कोर बेसिकली पर्पज ऑफ फीडबैक कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव फोकस्ड हो जो अपने क्लासरूम में सेट किए हैं या उस असाइनमेंट को एड्रेस करते हैं, और दूसरा बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। ये एक यूजर कमेंट लॉग फॉर कॉमन फीडबैक स्टेटमेंट्स एंड इश्यूज। इसके अलावा भी जैसे हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है जिसमें टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं और बच्चे से करते हैं कि इजीली यू नो दिस, ये जो टिप्स हैं इट कैन इजीली भी हमें टाइम को सेव करने में, टाइम को वाइजली यूज करने में और टाइम पे फीडबैक देने में और करेक्ट और इफेक्टिव फीडबैक देने में ये जो टिप्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये हमें यूजफुल रहती हैं। सो इंटीग्रेटिंग की टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑनलाइन ग्रेडिंग की, रूब्रिक्स, बट दीज आर नॉट एनफ। रूब्रिक्स आर नॉट ऑलवेज एनफ बिकॉज बच्चा खुद रूब्रिक्स को अंडरस्टैंड करने में ही गुम हो जाता है। Okay, now the thing is, the point is कि how do you react when you receive a feedback? आपको अगर कोई फीडबैक देता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? The first thing, and be open and be honest. If you want to write in chat box, write it. Aggressive, bad. Yes, Luna, Subedi, please share. You can unmute yourself. जब आपको फीडबैक कोई देता है तो how do you react? And be honest, huh? You can, Lubna, you can unmute yourself and or you can write in chat box. There are people who appreciate. Rachna, cool. By the way, there are few people जो appreciate करते हैं, जो basically जो ज़्यादा improvement चाहते हैं ना, वो feedbacks को appreciate करते हैं. Defensive, somebody else, but although depend करता है कि अब हम feedback किस तरह का मिला है, हमें feedback किस तरह का मिला है से पहले जो depend करता है वो किस अंदाज से दिया गया है। क्या वो सिर्फ क्रिटिक किया गया है, या वो कॉम्प्लीमेंट हमें मिला है, या फिर वो एक्चुअल फीडबैक मिला है, या सैंडविच अप्रोच यूज करके हमें फीडबैक दिया गया है।
Luna Smedhi, she says she feels motivated, and Monali, she says she accepts it positively. Great. If you are successful, by the way, इसका एक reason भी ये है कि you are open to feedback. Naila Sheikh, you want to say something? Naila, आपने hand raise किया. If you want to say something, unmute yourself. Okay. The important things जिसमें receiving feedback is when it is verbal. This is very important. Teach your students and teach yourself. Listen attentively. Let me see. Somebody is writing. Rachna, am I audible? Hello. ये किसी ने कहा कि जवेरिया कह रही है कि बटरिंग क्या है. The buttering is basically compliments. You only give compliments and there is no room for improvement. You don't highlight any room for okay, I'm now audible. The first thing, when it is verbal feedback, listen attentively and repeat what you hear. जो बंदा जो giver है उससे पूछें कि उसने बोला क्या है, आप इसे गौर से सुने. When it is verbal, and try to write it. Secondly, read and understand carefully. When it is written feedback, take time to read, understand carefully. परेशान नहीं हो जाएं. वैसे जब मुझे भी अपने याद है कुछ जो इवेंट्स मेरे साथ हो चुके हुए हैं. मैं अपनी जब कुछ स्टूडेंट थी M.Ed की, तो काफ़ी हमारी यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत सख्त थी. फीडबैक बहुत क्रिटिकल देते थे. तो फर्स्ट टाइम जब पर्टिकुलरली थीसिस पे हमें फीडबैक मिला, एंड द थीसिस वाज लाइक क्रॉस, and we were like what. लेकिन जब 4th 5th टाइम जाके हमने रीड किया है, इनफैक्ट मैंने अपनी बात करें तो मैंने जब रीड किया तो लाइक गॉट सम इम्प्रूविंग एरियाज भी कि नहीं ये तो मैंने कुछ अच्छा भी किया है इसमें, तो फर्दर जो एरियाज हैं ये हैं. तो रीड एंड अंडरस्टैंड केयरफुली फीडबैक, नेवर रिएक्ट. एंड हम लोग क्या करते हैं, किसी ने बोला नहीं, वैसे किसी ने कहा नहीं कि रिएक्ट करते हैं. नॉर्मली हमारे जो है ना, हम जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट से हम यहाँ बिलोंग करते हैं, उसमें या जितने मैं लोगों को जानती हूँ, वी एक्चुअली रिएक्ट और वी बिकम डिफेंसिव. वी से नो 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 नो, ऐसा नहीं होता. नो नो सर, मेरा मतलब ये था. नो नो मेरा मतलब ये था. We react like this, और we say नहीं, ये मैंने ये फलान से इसको रेफर किया है, बिस्तान से रेफर किया है, मैंने उसको भी दिखाया था, उसने भी फीडबैक दिया था. सो इस तरह, या फिर अगर वो कोई थोड़ा सा हार्श हो और ज्यादा इंप्रूविंग एरिया का आइडेंटिफाइड हो, तो हम क्या करेंगे, एंड देन वी स्टार्टेड क्राइंग, गोइंग आउट. वॉशरूम में जाओ या अपनी सीट पे जाओ और रोना स्टार्ट कर लो कि ये मैंने क्या किया, इतना आंसू मगरमच्छ वाले बहा के. तो मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो when somebody gives me a feedback, I sometimes react. I sometimes react कि जो थोड़ा सा ज्यादा वो हार्श हो, तो थोड़ा सा वो काफी वो एक इमोशनल लगता है मुझे वो, और कोशिश करती हूँ कि इस चीज को मैं ओवरकम करूँ. एंड ओवर द टाइम आई हैव नाउ आई एम आई क्वाइट वेलकम टुवर्ड्स फीडबैक. Don't try to be defensive. अगर हमने इम्प्रूवमेंट चाहिए और हमें एक्चुअल फीडबैक चाहिए तो वी शुडंट बी डिफेंसिव. और काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम से हम डिफेंसिव होते हैं अपने ही काम पे. हाँ, नाइला शेख says कि it's a मस्के लगाना. That is to flatter somebody, to praise. And ये इसको अगर हम कहेंगे कि ओवर करना, इसके praise ही देना, सिर्फ compliments ही देना है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया है, good job, great job, like there is no improvement. और बंदा जो है उस बटरिंग में ही खो जाता है. And the person, the receiver says there is no room for improvement. Ask for specific what you are doing well. The specific areas what you are doing well, plus what
areas that the specific areas that you want to improve. तो फीडबैक रिसीवर जो एक्चुअल चाहता है ना इम्प्रूवमेंट करना, वो पता है वो प्रेज की तरफ भी नहीं जाता है, वो जाता है अच्छा मुझे ये इस एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो फीडबैक गिवर के पास जाता है और कहता है कि कैन यू प्लीज रिपीट कि इसमें ये एरियाज ये इसको फर्दर में इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कौन से एक्चुअल एरियाज है जिसपे मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड आजकल फीडबैक देना ये इजी भी नहीं है, और इस जो टाइम इतनी जो मसरूफियत में अगर कोई फीडबैक देता भी है अपने एक तो प्रोफेशन का हिस्सा है एज अ टीचर, लेकिन अगर कोई हमारी पर्सनल लाइफ में फीडबैक भी देता है we should say thank you. Secondly, we should also teach our students. Students should know फीडबैक देने से पहले अपने क्लासरूम में उनको बता दें कि ये फीडबैक रिसीविंग के दौरान इन एरियाज पे उन्होंने काम करना है। Okay, so that's all for today's the art of effective feedback. जो एरियाज हमने कवर की हैं, now it's up over to you. Or if you have any question, if you have any concerns regarding the topic, please ask your questions, unmute yourself. Before that, one important thing is यूसुफ ने अभी फीडबैक फॉर्म आपको शेयर किया है, फीडबैक फॉर्म लिंक शेयर किया है, प्लीज यूज दिस फीडबैक फॉर्म टू गिव अ फीडबैक एंड द ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट द वेबिनार। और इसे ओके द लास्ट में सेंटेंस में अपने खत्म करूं बस इसमें, क्योंकि जब आप फीडबैक देंगे तो हमारे पास आपका डेटा आएगा और उस डेटा को यूज करके हम उन्हीं पर्सन्स को ये ऑटोमेटिकली ये सर्टिफिकेट जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट इशू होगा। आप जिनको क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज आई वुड इंकरेज टू आप अपना नाम भी बता दें और फिर पूछें। शहजादी, हेलो जी जी। I would thank everyone for being with us. So please अपने सवालों के बारे में हमेशा हमें लिखते रहें और फीडबैक जो है वो क्रिटिकली दे दें ताकि हम लोग फिर उसको मॉडिफिकेशंस कर सकें। ट्रू, बिल्कुल। इसमें ये कि हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें ट्रू फीडबैक दे दें, ताकि जो क्योंकि हम इस चीज़ को वैल्यू बहुत देते हैं फीडबैक को, कि फर्दर जो हमारे पास फ्यूचर जो वेबिनार्स हैं हम उसमें अकॉर्डिंगली हम इम्प्रूवमेंट लाएं। वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ फीडबैक, वी आर जिस तरह का भी आप फीडबैक दे दें वी एक्सेप्ट दैट, सो दैट आपके लिए नेक्स्ट टाइम जो हम लोग सेशंस लेके आ जाएं वो इम्प्रूव्ड हो इससे। And thank you so much for joining us, and thank you so much for acknowledging our efforts, and thank you so much for your feedback जो आप देंगे, and you will get your certificates in next 24 to 48 hours। और अगर आप फीडबैक हमें देंगे, हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं करें सेशन को, लेकिन हम ये सेशन वैसे फॉर्मली ख़त्म हो गया, ये यहाँ से मैं लीव नहीं कर रही, ताकि जो फीडबैक अगर आप लोग देना चाहते हैं तो वो फीडबैक देते रहें जिसने नहीं दिया है, ताकि आपको जो सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएं वो वहाँ से मिल जाएं, उस जो हमारे पास डेटा आ जाएगा। आपका करेक्ट नाम मेंशन कीजिएगा ताकि सर्टिफिकेट पे आपका नाम जो है करेक्ट मिल जाएगा। So we have less than 1 minute. Thank you so much for joining us, and I hope look forward to see you again in some other webinar.